good evening children. Welcome to Push English. So today it's time for Capsule 3. I hope you would have watched Capsule 1 and Capsule 2 and you will get benefited out of it. Thank you so much for your supports, for your encouraging and kind words. So without wasting much time, let's get started. So today I'm going to start with the third component of language skill, and this third component is reading. Okay, so what is reading? In this video I'm going to cover, children, 4 topics. First of all, the definition, then the purpose of reading, then do's and don'ts, and then we will cover up the technique with examples. Okay, so what exactly is reading? Like I said, ability to decode. Decode what? Ability to decode the meaning of the written or the printed string. Whatever is in written form or printed form, when you read it and you understand the meaning, that is reading. What is the purpose of reading? भाई ज़रूरत क्यों है इस रीडिंग की? आप करते क्यों हैं रीडिंग? तो आइए एक एक करके लेते हैं. सबसे पहले रीडिंग पर्पस है pleasure and enjoyment. Some people read for pleasure, for enjoyment, for entertainment, for amusement. They love to read. They are so passionate that they complete one after the other. And then some of them, they read for practical application. Now what is this practical application? Practical application is when you are reading, you understand the concept, you understand the idea written on the page, and then you relate it with whatever you know. So whatever you read, children, whatever you know and whatever you read, you relate it with this. This is called practical application. Now comes the third purpose, and that is develop the critical understanding and the comprehension. Okay, so let us move forward on the next slot. And the next slot is what are do's and don'ts. But before that, children, do you know the reading is to the mind what exercise is to the body? It means that to keep your body fit and fine, what do? You do yoga, meditation, exercise. Similarly, to keep your mental health, you do reading. Okay, so let us discuss about do's and don'ts. So the first point itself tells calculate reading speed. Now how many of you know what is your reading speed? Nobody knows it? Okay, I'll tell you how to calculate it. See, you pick up a page, a paragraph. See the paragraph, okay? If there are 5 lines, 1, 2, 3, 4, 5, and in each line there are 10 words, okay? For example, you count the number of words here. Either you can count this comes to be 50, and there are 5 lines. So this is 50 divided by 5, and this comes to be 10. It means there are 10 words per line. Okay. Now what are you supposed to do? You will set a timer for 1 minute. When you do this, start reading. And by the end of the 1 minute, you see how many lines you have read. Suppose that you have read 20 lines. You have read 20 lines. So what are you supposed to do? 20 lines multiplied by 10 words. This comes to be 200 words. It means what is your speed, children? Your speed is 200 words per minute. So you calculate it first, what is your reading speed, and then why I explained you the reading speed to be calculated. मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये स्पीड जानते ही नहीं हैं. ये 200 वर्ड्स पर मिनट का मतलब ये है कि आपको आज आपने शुरू की अगर पढ़ाई करना या रीडिंग करना कोई भी एक टेक्स्ट या शॉर्ट स्टोरी, तो आप क्या एक हफ्ते के बाद आपकी स्पीड इतनी ही है, आपको ये ध्यान रखना है. ओके, अगर स्पीड इतनी ही है इसका मतलब आप वहीं के वहीं हैं. सेकेंड नंबर पे आते हैं जहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है सूटेबल मटीरियल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस सूटेबल मटीरियल? सूटेबल मटीरियल का मतलब ये है कि आप शेक्सपियर मत पिकअप कर लीजिए फर्स्ट गो में ही. बिगिनर्स के लिए सबसे पहले छोटे मोटे जर्नल्स उठाइए, ब्लॉग पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए. और सबसे बड़ी बात, ये सूटेबल मटीरियल तब सूटेबल होगा जब आप अपने इंटरेस्ट एरिया को चूज़ करेंगे. वो एक वेदांतु ऐप पे गाना भी आता है ना,
बिना समझे जो पढ़ा तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो वही बात है बेटा कि जब आप इंटरेस्ट लोगे, मज़ा आएगा तो समझ आएगा, और समझ आएगा तो मज़ा आएगा। तो आप कुछ ऐसा उठाइए जो आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है, और उससे फिर फ़ायदा ये होगा कि ईजी टू डिफ़िकल्ट, उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे। यानी आपको ये ईजी टू हार्ड वाला जो मैगज़िम है ये तब फॉलो कर सकते हैं। हाँ, आप ईजी से शुरू करिए, पिकअप सम कॉमिक स्ट्रिप्स। शुरुआत करने के लिए शॉर्ट स्टोरीज़ उठाइए, कॉमिक स्ट्रिप्स उठाइए, नॉवेल्स उठाइए, उसके बाद जो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों होंगे। तो इस तरीके से हार्ड से ईजी से आपने हार्ड पर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स वाइल रीडिंग। अब ये वाइल रीडिंग का क्या मतलब है? पढ़ते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला, नॉर्मली हमारी क्या आदत होती है, जब हम पढ़ते हैं तो वी डोंट यूज़ एनीथिंग, हम पढ़ते जाते हैं बस, वी रीड इट अलाउड। आप पेन, पेंसिल या पॉइंटर यूज़ करिए। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग को बचपन से आदत ये सिखाया गया है, बचपन से ही हमारी ये आदत होती है कि वी रीड बाय स्पीकिंग लाउडली। हमें ऐसा लगता है कि हम ज़ोर से पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, और ये आदत हमारी जब तक हम एकेडमिक सेशंस कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, क्लास 12 तक ये हैबिट बनी रहती है, मैंने कई बच्चों में देखा है। तो ये इसको हम, इससे क्या नुकसान होता है? सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन और आइज़ जो है वो हमारे वॉइस से ज़्यादा तेज़ काम करते हैं, लेकिन चूंकि हम बहुत स्लो होते हैं पढ़ने में, इसलिए हमारी स्पीड जो है वो अब्रप्टली रुक जाती है, ठीक है। तो इस सब वोकलाइजेशन को डोमिनेट मत होने दीजिए, साइलेंट रीडिंग करिए, और साथ के साथ ये कोशिश करिए कि आप पॉइंटर जब यूज़ करेंगे तो आप फोकस्ड रहेंगे, आपका जो पेरिफेरल विजन है वो इन्हांस्ड होगा। उसके बाद सेकेंडली, जब आप रीडिंग कर रहे हैं, सपोज करिए आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, बाद में उन चीज़ों को समझ सकते हैं आप 2 बार 3 बार पढ़कर या मीनिंग्स देखकर डिक्शनरी में, एनी हाउ यू कैन डू इट। उसके बाद आते हैं स्पीड बैलेंस करना। अब स्पीड बैलेंस करने का क्या मतलब है? स्पीड बैलेंस करने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है ये चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, उस वक्त आप फास्ट हो जाइए, और जब लग रहा है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आगे के 10 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देन स्लो डाउन, ठीक है। उससे आप एक तो पेस आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है, और आपको समझ ज़्यादा आएगा। उसके बाद आते हैं, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हों, यू कनेक्ट इट टू द विजुअल्स। अब फॉर एग्जांपल क्लास 12th में एक पोइट्री है, माई मदर एट 66। जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं अक्सर ये बोलती हूँ उनको कि आप अपनी दादी माँ को विजुअलाइज करिए, और दादी माँ, सफ़ेद बाल, उनके जो है रिंकल्स हैं उनके चेहरे पर, तो जब आप विजुअलाइज कर लेते हैं तो आप चीज़ों को आराम से समझ लेते हैं, तो कनेक्शन होते ही कंसेप्चुअलाइज हो जाता है, यानी आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरह आ जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मेंटेन डिस्टेंस। किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है? डिस्टेंस मेंटेन करना है जो भी रीडिंग मटेरियल है, चाहे आप किंडल पे पढ़ रहे हो, या फिर आपने मोबाइल लिया है, या लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, या पीसी है, जो कुछ भी है, उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप कंफर्टेबल, अब ये नहीं कि लेट गए और पढ़ने लग गए, तो ये नहीं, आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं फटाफट कुछ टेक्निक्स पर। टेक्निक्स क्या हैं? टेक्निक्स बस 3 ही हैं यहाँ पर, जो मैंने कहा था आपको कि आप कैप्सूल 1 और कैप्सूल 2 वीडियोस दोबारा देख लीजिए। उसमें मैंने ये बताया है आपको कि लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, ये जब थर्ड कंपोनेंट है तो ये बाकी के 3 जो 2 कंपोनेंट हैं इस तीसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो उसमें जो भी मैंने रूल्स बताए हैं, जो भी तरीके बताए हैं, टेक्निक्स, वो आप इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। मेक अ टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल का क्या मतलब है भाई? मंडे टू सैटरडे एक टाइम टेबल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मंडे को आप रखिए सिर्फ 2 पेजेस ही पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी के, इनिशिएट करिए, ठीक। ट्यूसडे को आप थोड़ा और बड़ा कोई ब्लॉग पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को जाइए तो एक लॉन्ग स्टोरी पढ़ लीजिए, उसके बाद थर्सडे को आइए तो आप कोई रिव्यू पढ़ लीजिए, कमेंट पढ़ लीजिए, जो ऑनलाइन आर्टिकल्स होते हैं उनके कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। इसी तरीके से सैटरडे को जाइए, फिर आप एक वो करिए, आप एक नॉवल पिकअप करिए, और सैटरडे संडे कोशिश करिए, होगा नहीं शुरुआत में, थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेटर ऑन यू विल डू इट, एंड वंस यू स्टार्ट, I can promise you that your English will go to next level. And then comes XQR3 method. What is this XQR3? X stands for survey, Q stands for question, and 3 R's. 3 R's here means read, recite and review. तो आपने जो कुछ भी रीडिंग मटेरियल यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल एक नॉवल पढ़ा, सर्वे करो कौन सा पढ़ना चाहिए, पहले तो सेलेक्ट कर लिया मटेरियल, फिर आस्क
क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, 5 W's पूछो भाई, क्या पढ़ा आपने, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। अगर आप इन सवालों का जवाब दे रहे हो इसका मतलब आपकी समझ में आ गया है। और लास्ट में आते हैं 3 R's पर, यानी रीडिंग करते वक्त रिसाइट करिए ज़ोर ज़ोर से कई जगह पर, अगर ऐसा महसूस हो कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं रिसाइट करिए और फिर रिव्यू करिए उसको। और लास्ट में सेट चैलेंज फॉर योरसेल्फ, अपने लिए चैलेंज सेट करिए। आपने एनी जोन्स के बारे में सुना होगा, शी हैज़ रेड 784 पेजेस इन जस्ट 47 मिनट्स, इमेजिन। और बिल गेट्स, वो तो खैर आइडियल हैं बहुतों के, वो 50 बुक्स पर ईयर पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब नेपाल के दीपक शर्मा भाई जब वो 113 आवर्स 15 मिनट्स पढ़कर रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं भाई? हमसे तो 113 घंटे पढ़ने के लिए भी नहीं बोला जा रहा है। तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, बी रेगुलर एंड बी पेशेंट, क्योंकि ये इट इज़ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट चिल्ड्रन, और ये लाइफ लॉन्ग है, तो आपको बहुत रेगुलर रहना है। रीड एवरी डे, रीड एवरीथिंग एंड बी पेशेंट। ये आदत छोड़िए मत पढ़ने वाली। सो रीडिंग हैबिट once inculcated in you is going take you to the next level, and I'm very sure that जो ग्रामर है वो सबसे ज़्यादा आपको रीडिंग से आता है। So thanks for watching children, see you in next video.